شاپنگ کرنے گیا ہوں اور آپ کی چالاکی کبھی پکڑی گئی ہو؟ میری اکثر پکڑی جاتی ہے۔ میں نے شاہی صاحب کو ویڈیو بنانے میں بزی کرایا تھا تاکہ جو چیزیں لینی ہیں میں آرام سے لوں۔ یہ پھنس گیا سی ہے۔ میری چوری پکڑی گئی۔ میں نے کہا ادھر جانا سی۔ السلام علیکم، یور ہوسٹ پیاری دوست شازیہ شاہد نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی جناب، میری چالاکی یوں پکڑی گئی، میں نے شاہی صاحب کو لگایا، میں نے کہا شاہی صاحب یہ دیکھیں کتنے اچھے انہوں نے انسٹال کر کے نا، مطلب پورا ایک سیٹ اپ کر کے وہ کیا ہوا ہے، اس کی ذرا ویڈیو بنا لو۔ میں نے کہا یہ ویڈیو میں بزی ہوں گی اور میں جلدی جو چیزیں لینی ہے نا ان کو بیگس میں ڈال لوں گی، کیونکہ کاؤنٹر پہ جا کے نا یہ ہر جینٹس کا ہی ہوگا۔ آپ لوگ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کاؤنٹر پہ جا کے کبھی بھی جینٹس چیز باہر نہیں نکالتا، کیونکہ عزت پہ بات آ جاتی ہے، لیکن شاپنگ کرتے وقت اگر وہ چیز دیکھ لے کہ بیوی یہ اٹھا رہی ہے، یہ لے رہی ہے، غیر ضروری لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس چیز کو رکھوا دیتے ہیں واپس، کہ کیا ضرورت ہے، اتنی چک ڈال دیتے ہیں کہ آپ رکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ خیر میں اتنی تو نہیں ہوتی مجبور، لیکن میری کوشش تھی کہ چک کیے بغیر نا میں آرام سے وہ چند چیزیں بیگ میں ڈال لوں جو مجھے لینی ہے، تاکہ شاہی صاحب کچھ نہ بول سکیں۔ میں نے ان کو ویڈیو بنانے کے لیے کہا، پتہ چلا انہوں نے ویڈیو سٹارٹ ہی میرے اوپر سے کی اور وہ میری ہی ویڈیو بنائے جا رہے تھے۔ دیکھا تو آپ کی بہن کس طرح سے پھنسی۔ چلیں خیر ہے، ٹینشن نہیں لینی، یہ تو اکثر ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور شاہی صاحب سے ڈانٹ، ہو مائی گاڈ، میں تو اب یوزڈ ٹو ہو گئی ہوں، میں اب ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتی ڈانٹ ڈپٹ کی۔ چلیں جی، ڈانٹ ڈپٹ تو بہت ہو گئی، اب بڑھتے ہیں آگے۔ میرے جو ڈرائنگ روم میں پلس شاہی صاحب کے بیڈ روم میں جو کنسول، یعنی کہ وہی جو ڈیوائڈر ٹائپ کا شیشے کے نیچے رکھا ہوا ہے، اس پہ رکھنے کے لیے مجھے کچھ پلانٹس ٹائپ کی چیز چاہیے تھی، تو وہ دیکھنے کے لیے ہم اکیا چلے گئے، اور ایز یوزول میرے ہینگر پھر کم پڑ گئے تھے اور مجھے مزید ہینگر چاہیے تھے۔ ہنسنا منع ہے جناب۔ ہم اکیا چلے گئے، اکیا جا کے ہم نے کچھ پلانٹس وغیرہ دیکھنے شروع کیے، بس زیادہ چیزیں نہیں لیں، کچھ چیزیں ہی لیں ہم نے، جو ہمیں ایک آدھی چیز سیل میں بھی مل گئی، پلانٹس تھے اچھے تھے، ریزنیبل پرائز میں مل گئے، تو ہم نے وہ بس چند ایک چیزیں، زیادہ شاپنگ نہیں کی۔ میں بہت اچھی بچی ہو گئی ہوں، اب میں زیادہ شاپنگ نہیں کرتی، اب میں تھوڑی کر کے زیادہ شاپنگ کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ شاپنگ سے یاد آیا، آپ لوگوں کو بتایا تھا شاید ویڈیو کے کلپ میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، جب ہم نے گروسری کی تھی اس میں نے کافی سارے پلانٹس بھی لیے تھے۔ وہ سب جو ہے نا شاہی صاحب کے کمرے میں، یعنی کہ ڈرائنگ روم میں ڈائننگ ٹیبل کے اوپر جو ہے نا قبضہ جمع ہے، وہاں پہ سارے پلانٹس، پاٹس، مٹی وغیرہ سب وہیں پہ ہے، جو ابھی تک سمٹ کے نہیں دے رہی۔ بیچ میں موسم خراب ہو رہا تھا، اور کل یعنی کہ ہفتے والے دن موسم تھوڑا ٹھیک ہوا، تو میں نے سوچا کام کرتے ہیں، لیکن شاہد صاحب کو جانا تھا، ان کی کرکٹ ٹیم کی طرف سے کئی سال پورے ہونے پہ کچھ انہوں نے گیٹ ٹوگیدر رکھا ہوا تھا، یعنی کہ باربیکیو کا کچھ موج مستی تھی، تو انہوں نے وہاں جانا تھا، سارے پرانے دوستوں نے مل کے یہ وہاں چلے گئے، تو میرا موبائل میں نے ان کو دیا، میں نے کہا یار میرے لیے تھوڑی سی ویڈیو بنا لینا، ویڈیو بنا کے تو لائیں، اب چیک کروں گی اور پھر اس کے کلپ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ تو اس وقت شاہی صاحب کا کمرہ جو ہے نا، اوہو پورا نرسری بنا ہوا ہے، یعنی کہ وہاں سارے پلانٹس اور سب کچھ لٹر پٹر ہر چیز وہاں آئی ہوئی ہے۔ دیکھیں آج میں نے شروع تو کرنا تھا اس کے اوپر کام، لیکن ہوا یوں کہ کل ایک چیز ڈھونڈ رہی تھی، وہ چیز مجھے ملی نہیں، تو اس چکر میں جو ہے نا بہت ٹائم ویسٹ ہو گیا، تو کل شاہی صاحب کے جانے کے بعد بھی میں پلانٹس کے اوپر کام نہیں کر سکی، اس چیز کو ہی ڈھونڈتی رہی۔ بس لیٹ جب شاہد صاحب اپنے دوستوں کی طرف سے واپس آئے تو ٹائم اتنا نہیں تھا، ہم نے ٹائم ویسٹ کیے بغیر علی اور عائشہ کی طرف نکل گئے، کیونکہ انہوں نے ہمارا ڈنر ارینج کیا ہوا تھا۔ پھر ہم وہاں چلے گئے، کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھے اور رات گئے وہاں سے آئے، تو اس طرح سے کر کے ہفتے کا دن ہمارا ہوا تمام۔ ہفتے میں ایک دو دفعہ علی اور عائشہ کو شدت سے ہماری یاد ستائی جاتی ہے، تو وہ ہمیں ڈنر پہ انوائٹ کر لیتے ہیں اور ہم پھر باخوشی وہاں ڈنر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو بچوں کا پیار ہے، بس اللہ میں ان کے رزق میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ آج یہ ہے کہ پلانٹس کے اوپر نہیں کام ہوگا، آج جو ہے اس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے اسٹور روم جانا ہے، کیونکہ اوپر وہ چیز اویلیبل نہیں ہے، اور وہ چیز کہاں ہے، وہ چیز کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ تو جناب یہ ہوگا اب انشاءاللہ منڈے والے دن، ہو سکتا ہے کہ میں پلانٹس کلیئر کروں اور پھر ان کو باہر ان کی جگہوں پہ شفٹ کر دوں، لیکن اگر آج بھی ٹائم مل گیا تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کام میں پلانٹس کے اوپر کر ہی لوں، کیونکہ پلانٹس اب شفٹ ہونے سارے باہر،
तो उनको अच्छी तरह से मिट्टी चेंज कर कर, और आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कोरोना के दौरान जो मैं प्लांट्स के ऊपर काम कर रही थी तो मैं फर्टिलाइज़र यानी कि जो खाद वाद, ये इस तरह से नेचुरल चीज़ें जो हमारे घर में सब्जियों फल के छिलकों से जो फर्टिलाइज़र तैयार होता था वो मैं कैसे बनाती थी। तो वो सब कुछ तो ख़त्म हो गया था, लेकिन वो एक बॉक्स जो है जिसके अंदर वो फर्टिलाइज़र रखा हुआ था वो भी आप लोगों को, यानी कि घर की खाद आप लोगों को वो भी दिखा कि वो किस तरह से है। कल मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा ओहो, मुझे था कि शायद ना बहुत स्मेल उठेगी और ख़राब हो चुका होगा सब कुछ ये वो, लेकिन ये है कि ना स्मेल थी, बिल्कुल ठीक रहा। गीला, हाँ, क्योंकि गीला तो खैर मैंने उसको खुद किया हुआ था, ऊपर से प्लास्टिक कवर भी था तो उस वजह से मिट्टी गीली ही रही। आप लोगों को दिखाऊंगी, वो हो सकता है कि मैं जो प्लांट चेंज करूँ ना, उनके जो पॉट्स हैं उनके नीचे यानी कि बेसमेंट पे वो उसकी एक एक लेयर लगाऊं ताकि मिट्टी को वहाँ से न्यूट्रिशन मिलता रहे, यानी कि ताकत मिलती रहे, उनको उनकी खुराक मिलती रहे, और ऊपर वो मिट्टी डालूंगी जो मैं नई लेकर आई। आई होप कि मिट्टी अच्छी निकल आए, क्योंकि मिट्टी के मामले में ना यहाँ पे मैं बहुत अनलकी हूँ। बहुत मुश्किलों से जो है ना देख देख के लाना पड़ता है कि वो बदबू वाली जो गोबर वाली खाद होती है या मिट्टी होती है वो ना हाथ में आ जाए। तो खैर अब मैं लाई तो हूँ, अब खोलेंगे और चेक करेंगे कि क्या है, क्यों, क्योंकि वो वाला जो है ना, क्योंकि गोबर खाद वाली मिट्टी जो है वो आप इंडोर प्लांट्स में यूज़ नहीं कर सकते, और मेरे पास ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स ही हैं जो गर्मियों में तो मैं बाहर निकाल देती हूँ पर सर्दियों में वो घर के अंदर ही आ जाते हैं। तो अगर गोबर खाद या गोबर वाली मिट्टी अगर उसके अंदर होती है तो एक तो स्मेल करती है, दूसरा जब वो घर के अंदर प्लांट्स आते हैं तो उनके साथ वो बारीक बारीक ब्लैक कलर के ना बिन बनाते हुए जो मक्खी टाइप के बहुत छोटे छोटे बारीक से होते हैं, बहुत बारीक से होते हैं, तो वो कीड़े आना शुरू हो जाते हैं। तो उस वजह से जो है ना मिट्टी की सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। बस जैसे ही सारे प्लांट सेट हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह सारी वीडियो और सेट होने के बाद भी बैल्कनी कैसी लग रही है और आउटसाइड यानी कि हमारा इंटरेस्ट जो है घर का वो कैसा लग रहा है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस यही है कि ये चीज़ें ऐसी हैं यार, इसमें ना टाइम एक तो स्लो करना पड़ता है, आप इसको झटपट नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पर जब आपने पौधों के पॉट चेंज करने होते हैं, इनकी मिट्टी चेंज करनी होती है तो बहुत ख्याल रखना होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ों को हवा ना लग जाए या पॉट चेंज करते वक्त कोई जड़ जो है वो गलत तरीके से जो है ना डैमेज ना हो जाए, इस तरह से इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वरना आपकी सारी जो मेहनत होती है ना वो धरी धरी रहती है। और एक और मेरा प्लांट है उसमें से भी मैं यानी कि मदर प्लांट में से भी कुछ शाखें निकाल के उनका भी जो है ना एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि इस प्लांट का एक्सपेरिमेंट मैं फर्स्ट टाइम करूँगी, तो इंशाल्लाह वो एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये नहीं कि अब चंद व्लॉग्स जो हैं वो आपके साथ प्लांट्स के ऊपर होने वाले हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ और नई लुक घर की कैसे चेंज कर रही हूँ। कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर रही, शॉपिंग की है पर सोच समझ के ऐसी चीज़ें जिसमें कॉस्ट कम जा रही हो और वो चीज़ दिखने में अच्छी लग रही हो, इस तरह से कर करके चीज़ें ली हैं। और कुछ चीज़ें आपकी बहन ने सेकेंड हैंड शॉप से यानी कि जो मैंने आपको फ्लू मार्ट दिखाया था वहाँ से भी ली हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ फुल कॉस्ट वाली महंगी ही लाएं। अगर आपको यूज़ में या किसी ऐसी ऐप पे जहाँ पे लोगों ने अपने घर की कोई आइटम्स जो है फॉर सेल के लिए लगाए होते हैं वहाँ से मिल सकती है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, जो इजीली आपको आपकी रेंज में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि देखें वो चेंज करते हैं क्योंकि उन्हें कोई नई चीज़ लानी होती है। आप भी अपने घर में जो नई चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हो तो लाज़िम बात है पुरानी चीज़ें आपने भी निकालनी होती है। तो कोशिश क्या करें लो कॉस्ट में ऐसी चीज़ें लाएं कि जब आपका दिल भर जाए तो उसको फेंकते हुए किसी को देते हुए आपका दिल ना दुखे कि वो इतना एक्सपेंसिव है, मैं कैसे दूं, मैं क्या करूं। तो लो बजट में अगर आपको चीज़ मिल जाती है तो लाएं, अपना शौक पूरा करें और कुछ टाइम के बाद उसको चेंज कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपना डाइनिंग टेबल भी यूज़ में लेकर आई थी। टेबल तो खैर हमारा अपना ही था, लेकिन जो उसका सिटिंग एरिया यानी कि एल शेप में जो बना हुआ वो था, क्योंकि मुझे इसी लकड़ी में और इसी तरह से चाहिए था तो मुझे मिल नहीं रहा था, तो ये मैंने यूज़ में ही लिया था और माशाल्लाह से अभी तक चल रहा है। मेरे घर में खैर चीज़ें लॉन्ग टाइम ही चलती हैं क्योंकि बच्चों के इतनी आमदोरफ्त होती नहीं है, और हो भी तो इतना तो बच्चों को मैंने किया हुआ है कि वो डिसिप्लिन में ही होते हैं। इतनी छलांगे मारना बिस्तरों के ऊपर या इस तरह से जंपिंग शंपिंग ये मेरे घर में तो अलाउ बिल्कुल नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मियां नजर बद से बचाए कि बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बात सुन लेते हैं। मैंने कभी भी अपनी बात उनको समझाने के लिए उन पे हाथ नहीं उठाया। हाँ, लाउड कभी कभी हुई हूँ, एक ही दफ़ा लाउड होती हूँ,
किसी भी चीज़ के लिए लाउड होकर एक ही दफ़ा बोलती हूँ कि ये काम आप लोगों ने नहीं करना, तो वो उस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम उस चीज़ की तरफ नहीं जाते। अब अल्लाह खैर करे, अलीज़ा बेगम क्या करेंगी उनका अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो अभी से मुझसे बहुत लड़ती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब वो उसकी दादों के साथ अभी से नहीं बन रही, तो अब मुझे नहीं मालूम कि वो मेरे रूल्स फॉलो करेगी कि नहीं करेगी, या मुझे उसके रूल्स फॉलो करने पड़ जाएंगे। चले देखेंगे ये तो। जनाब एक डिमांड और आ चुकी हुई है मेरी पोती अलीना की कि दादो मैंने जो आपको एक अपना कार्टून क्लिप बना के दिया है कि मैं शाजिया शाहिद मेरे चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, इस तरह वाला, वो आपने अपनी हर वीडियो के एंड पे लाजमी लगाना है, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। मुझे वो बहुत पसंद है और मैंने स्पेशली आपके वीडियो के लिए ही वो बनाया। तो अलीना आप टेंशन ना लो, मेरी हर वीडियो के एंड पे आपका वो क्लिप इंशाल्लाह लगा करेगा। अब अलीना की बात मानूं और सफ़ा की बात ना मानूं तो ये कैसे हो सकता है जनाब। मुझे तो आजकल बड़े थ्रेड आ रहे हैं। सफ़ा की तरफ से थ्रेड आया, आप अपनी हर वीडियो पे जहां अपने सब्सक्राइबर को प्रमोट करती हैं, उनके वो एड्स लगाती हैं, उसमें एक ऐड हर दफ़ा मेरा लाजमी होना चाहिए और अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी मेरा जिक्र लाजमी किया करें, मुझे प्रमोट करें। तो ठीक है सफ़ा, आप टेंशन ना लो। सफ़ा मेरी भांजी का नाम है, सफ़ा आप टेंशन ना लीजिए। इंशाल्लाह मैं इस पे भी पूरा अमल करने की कोशिश करूंगी कि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। सबकी शिकायतें सुनते सुनते उस पे अमल करते करते जनाब वीडियो एंड की तरफ आ गई है। तो इसके साथ ही इजाजत तो चाहूंगी, लेकिन आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर ऊट पटांग आने वाली वीडियो टाइम से आपको मिल सके। और जिस वीडियो में मैं जिसको प्रमोट करती हूँ उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भी मौजूद होता है, आप चेक कर सकते हैं। हैंगर हैंगर देखो कहाँ छोड़ा बस गाड़ी खोल दो। डिक्की भी खोल दो यार, शायद बस कर दो। के नए वीडियो पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और प्यारे प्यारे कमेंट्स देने हैं। ये देखें शाही साहब ये हरकतें करते हैं मेरे साथ। काउंटर से मैंने 2-3 चीजें उठाई, बाकी सारी चीजें भी मेरे हाथ में डाल दी और मेरी वीडियो बनाए जा रहे थे और गाड़ी के पास आके गाड़ी भी नहीं खोल रहे थे। ज्यादती है ना। चलें जी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। योर होस्ट प्यारी दोस्त शाजिया शाहिद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलेंगे किसी नई वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, नई मस्तियों के साथ। अल्लाह हाफिज।